آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے تیاریاں۔ ریونت ریڈی نے جاریہ ماہ کے اواخر تک انتظامات مکمل کر لینے کی دی ہدایت۔ 26 جنوری سے عوامی فلاح و بہبود کی 4 نئی اسکیمات، ریاستی وزیر سرینواس ریڈی کا اعلان۔ BRS پارٹی دفتر پر کانگریس حامیوں کا حملہ، بھونگیر میں واقع۔ ٹالی ووڈ اداکار الو ارجن کو عدالت سے ملی راحت، حاضری کے لیے پولیس اسٹیشن جانا نہیں ہوگا۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ میں المناک حادثہ، 5 نوجوان ڈیم میں غرق، چیف منسٹر کا اظہار رنج۔ سنکرانتی تہوار کی تیاریاں عروج پر، شہری کرنے لگے آبائی مقامات کا رخ، ٹریفک جام جیسی صورتحال۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ آگ اور برف ایک دوسرے کے مخالف عناصر ہیں، لیکن امریکہ میں ان متضاد عناصر نے ایک ہی وقت میں لاکھوں افراد کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ ایک طرف امریکہ میں آگ کی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں تو دوسری طرف برفانی طوفان نے نظام زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی امریکہ میں جنگل کی آگ اور برف تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کے متعدد نتائج نکل سکتے ہیں۔ ترکیہ نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں آگ لگنے سے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک تحریری بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ ہمیں امریکہ میں لاس اینجلس شہر اور اس کے گرد و نواح کے زیر دست نقصان کو پہنچنے والی آتی زدگی کی تباہی سے بہت دکھ ہوا۔ ہم جانی نقصان پر امریکی عوام سے تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ لاس اینجلس میں جاری آگ سے مرنے والوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی ہے۔ کینیا میں طیارہ گرنے اور اس میں آگ بھڑک اٹھنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ کینیا کے ساحلی شہر مالندی کے قریب مالندی ممباسا ہائی وے پر ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں طیارے میں سوار 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ جمعہ کے روز اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک صحافی سمیت کم از کم 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ غازہ میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کا خطرہ ہے جس سے ایندھن کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداران نے یہ اطلاع دی ہے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس میں ناصر ہاسپٹل کے طبی حکام نے بتایا کہ شہر میں متعدد مقامات پر فضائی اور توپ خانے کے حملوں کے بعد 4 نعشیں نکالی گئیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے 27 جنوری کو تلنگانہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ کانگریس ذرائع نے بتایا کہ یہ دونوں قائدین تلنگانہ میں حکمران جماعت کانگریس کی جانب سے دستور کے 75 سال کی تکمیل کے موقع پر منعقد ہونے والے سنویدھان بچاؤ پروگرام میں شرکت کریں گے۔ حالیہ دنوں تلنگانہ کانگریس کے سیاسی امور کمیٹی کے اجلاس میں کانگریس کے اعلیٰ قائدین کو سنویدھان بچاؤ پروگرام میں شرکت کی دعوت کا فیصلہ کیا گیا تھا اور تلنگانہ کانگریس کی دعوت پر راہل گاندھی اور صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے ریاست کے دورہ کرنے والے ہیں۔ اورنگ آباد ضلع کے جمہور تھانے میں ہفتے کو ایک شخص نے اپنی بیوی کا کلہاڑی سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اورنگ آباد کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر سنجے کمار پانڈے نے بتایا کہ آج صبح اطلاع ملی کہ رگھوناتھ پور گاؤں کے رہنے والے رمیش موریہ نے اپنی بیوی کا کلہاڑی سے حملہ کر کے قتل کر دیا اور اس کی نعش کو جلا رہا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ملزم رمیش موریہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم نے تفتیش کے دوران اقبال جرم کر لیا ہے۔ پنجاب کے لدھیانہ سے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی گرپریت گوگی کی جمعہ کو دیر رات لدھیانہ میں ان کی رہائش گاہ پر سر میں گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ سینئر پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لدھیانہ ویسٹ سے عام آدمی پارٹی کے MLA اپنے ہتھیار کی صفائی کر رہے تھے۔ شہر کے پولیس چیف نے کہا کہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ آیا یہ خودکشی کا واقعہ ہے یا حادثاتی فائرنگ۔
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जारिया माह के अवाखिर तक असरी सहूलियात के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखने के इंतजाम करें। उन्होंने हैदराबाद में इन इंतजामात का जायजा लेते हुए ओहदेदारों से गोशा महल में अराजी के बारे में तफसीलात तलब की और उन्हें हिदायत दी कि अराजी को मुंतकिल करने का काम करे जो मुख्तलिफ महकमे जात के तहत है। हुक्काम ने चीफ मिनिस्टर को नए हॉस्पिटल की इमारत के डिजाइन से वाकिफ करवाया और नक्शे भी दिखाए। रियासती वजीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में गरीबों के लिए 26 जनवरी से 4 नई फलाह बहबूद की स्कीमात पर अमलावरी का आगाज होगा। वजीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने जिला कलेक्टर खम्मम मुजम्मिल खान के साथ खम्मम अर्बन मंडल के मल्ले मदगू में 80 मकानात पर मुश्तमिल एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर इत्तलात ने कहा कि संक्रांति फेस्टिवल के तोहफे के तौर पर मुस्तहिक खानदानों को ये 80 मकानात मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवामी तायद के जरिए 1 साल कबल जो इंदिरम्मा हुक्मरानी वजूद में आई है वो गुज़िश्ता 10 साल की बेकायदगियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मरकजी टीम इस माह की 20 तारीख को तेलंगाना के कोत्तागुड़म का दौरा करेगी ताकि मुजवजा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के क़याम के लिए दरकार अराजी का मायना किया जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में मरकजी टीम के दौरे के इंतजामात और तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी के मकसद से 38 लाख रुपए मंजूर किए थे। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने अपने बयान में कहा कि कोत्तागुड़म को इस नए एयरपोर्ट के क़याम से तक़वियत हासिल होगी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट ट्रैवल्स की 11 बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। संक्रांति त्यौहार के मौके पर जायद किराए की वसूली और कवायद की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ओहदेदार इन प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पांडिचेरी, मैंगलोर, मैसूर, कन्याकुमारी से हैदराबाद आने वाली बसों की बेंगलुरु हाईवे पर आरामगढ़ चौराहे के पास बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 11 बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा जगतियाल रूरल मंडल के तुक्कलापल्ली और अंतारम के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 बाइक्स का तसादुम हो गया। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। हादसा इतना खतरनाक था कि जगतियाल रूरल मंडल के जाप्तापुर के अरविंद और साई मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि इलाज के दौरान कोंडापुर का रहने वाला वंशी जानबर न हो सका। वंशी गुज़िश्ता हफ्ते खलीज से वापस हुआ था। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और तकरीबन 12 जख्मी हो गए। यह हादसा बेंगलुरु हाईवे पर भूरेड्डीपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब बेंगलुरु जाने वाली बस एक ट्रक से टकरा गई। यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। इस सिमत एक कार का टायर फट पड़ा। ट्रक के ड्राइवर ने, जो कार के फौरन पीछे था, गाड़ी से इम्कानी टकराने से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाए और ट्रक के पीछे आने वाली प्राइवेट बस इससे टकरा गई। जख्मियों को पुलिस ने करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त में कुछ देर के लिए खलल पड़ा था। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामगुंडम बल्दिया कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने गैर मजाज दुकानात को मुनहदम कर दिया। पुलिस की सिक्योरिटी के दरमियान पोचामा मैदान में दुकानों को टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों ने खाली कराया और इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी। छोटे ताजरीन ने जेसीबी मशीन को अपनी दुकानें गिराने से रोकने की कोशिश की और इनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि इसे गिराकर मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाए और कहा कि बगैर किसी नोटिस के कार्रवाई मुनासिब नहीं है। అన్యాయం ఎందుకంటే చెప్పకుండా చేయకుండా రిపోర్ట్ చేయకుండా అధికారులు చెల్లాల్సింది ఎందుకంటే ఒక వస్తువు తీసుకుందామని కూడా చేయకుండా ఒక 5 నిమిషాలు 2 నిమిషాలు ఆగకుండా కూడా ఇది చెల్లాయించడం పెద్ద నేరం ఇది వాస్తవానికి అని చెప్పాలంటే
ఇది ఒకళ్ళు చెప్పాలి, ప్రజలు చెప్పి ఇది ఎందుకు ఇది కాల్ చేయరు, అన్ని చేసినాక చేయాలి, కానీ ఇట్లా చేయకూడదు కదా. ఇప్పుడు ఒక అవకాశం ఇవ్వకుండా ఏమి ఇవ్వకుండా దెబ్బలు బాడీ కూడా అవి తీసుకుంటే వస్తువులు అది తీసుకొని ఆగమన్నా కూడా అది కూడా దొబ్బుతారు ఆ వస్తువులలో కళ్ళకి ఆల్రెడీ. ఈ పోలీసు వాళ్ళైనా ఎవరైనా కూడా అది అన్యాయం, ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. 70 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ బతుకుతున్నాం సార్. మరి వాడు మాకేమైనా ఎక్కడన్నా జాగ్రత్త సూచించి మరి మాకు ఏమైనా సూచించి తీయాలి కదా. ఇట్లా సడల్గా వచ్చి తీస్తే ఎక్కడ పోతారని తెలుసు సార్. గెలిచేదాకా ఒక మాట, గెలిచినాక ఒక మాటనా? అప్పుడేమో అట్లా చెప్తా ఇట్లా చెప్తా అని అప్పుడు చెప్తే అప్పుడు అట్లా చేసినాము, ఇప్పుడేమో ఇట్లా చెప్తాండు. మేము ఎట్లా బతకాలి, ఎక్కడ పోవాలి? మేము మా బతికే ఆధారం పోయినాక మేము బతికేందుకు? మేము ఇద్దరు హార్ట్ పేషెంట్లు మేము ఎక్కడ పోవాలి? సావాలా బతకాలా? మరి వాడు అట్లా చెప్తే వాడు ఏమైనా చెప్పాలి కదా, చేయాలి కదా. మరి వాడు అప్పుడు కూడా అట్లనే చేసారు, మాకు ఎటు కాకుండా చేసారు. అప్పుడు కూడా మాంకా స్వామి కూడా, కొంకటి లక్ష్మీనారాయణ ఆయన అందరూ, రాహుల్ గాంధీ అప్పుడు అట్లా చేసారు మాకు. అప్పుడు మీకు కట్టిస్తాం, నా అక్క అనుకుని కట్టిస్తా, నా చెల్లె అనుకుని కట్టిస్తాం, మనతని నిలబడిస్తాం మీకు, అట్లా ఇట్లా అని అప్పుడు అట్లా చేసారు. ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్తారు. దొంగల వీళ్ళకు ముఖం లేదా? మరి ఏమైనా చెప్పించి చేయాలి కదా పనులు చేస్తే. ఎట్లా చేస్తే మేము ఎక్కడ పోయి బతుకుతాం? ఇప్పుడు మేము ఇక్కడనే సత్తాం. వాడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ? 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం. మాకు ఏం చెప్పకుండా చేయకుండా వచ్చి ఒక 10 నిమిషాలలో ఇక్కడ మొత్తం మీరు కాల్ చేయాలని ఇక్కడ దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. మరి మాకు ఎక్కడ చూపించి తీయాలని అట్లా కూడా ఆలోచించకుండా దౌర్జన్యంగా ఇక్కడికి వచ్చి మొత్తం కూలగొడతారు. కనీసం ఇప్పుడు మా మమ్మీ మా డాడీ ఇద్దరు హార్ట్ పేషెంట్లు ఉన్నారు. ఇది కొంచెం అని ఆలోచించి మాకెక్కడైనా చూపించండి సార్. మీకు దండం పెడతాం. నేను మీ వెనక తిరిగినా, మీ కార్యకుడుగా నేను మీ వెనక తిరిగినా, మీ జెండా మోసినా, కానీ నాకు ఇప్పుడు మా ఇంట్లో మా మమ్మీ మా డాడీకి చూసుకోవాలంటే నేను ఎక్కడికి పోయి బతకాలి? మాకు ఇది ఒకటే ఆధారం ఉండే. 3 ఫ్యామిలీలు దీంట్లో బతికేటోళ్ళు ఇప్పుడు 3 ఫ్యామిలీలు రోడ్డు మీద బతుకుతూ ఇప్పుడు ఎక్కడ పోవాలి మేము? ఇప్పుడు 3 ఫ్యామిలీలకు మీరు రోడ్ పాలన చేసినట్టే కదా సార్. కనీసం ఒక్కసారి ఆలోచించండి మా కోసం. చిరుబాపురాజు గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించి మా గురించి ఎక్కడైనా ఒక టెంపరరీ ప్లేస్గా ఒకటి ఎక్కడైనా కేటాయించి వాళ్ళకి అక్కడ చేర్పించిన తర్వాత మాకు ఇక్కడ నుంచి కూలగొట్టండి. మేము కూడా అభివృద్ధికి సహకరించుతాం. కానీ ఇది ఒక 5 నిమిషాలలో వచ్చి కాల్ చేపించడం కరెక్ట్ కాదు సార్. ఇది ప్లీజ్ సార్ మా చిరు వ్యాపారులకు కొంచెం సహకరించండి. మాకు ఎక్కడైనా దారి చూపించిన తర్వాత ఇది తీయండి సార్. ప్లీజ్ సార్, మీకు దండం పెడతాను. तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें 5 नौजवान डैम में गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 7 नौजवान दोस्त वीकेंड के मौके पर तफरीह की गर्ज से कोंडा पोचम्मा सागर डैम की सैर पर निकले थे। ये झील अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है और अक्सर सयाह यहाँ आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह सफ़र इन नौजवानों के लिए आखिरी साबित हुआ। तफरीह के दौरान सेल्फी लेते हुए 2 नौजवान डैम के पानी में गिर गए। उन्हें बचाने की कोशिश में बाकी 5 भी पानी में कूद पड़े। मुकामी लोगों ने हादसा देखते ही फौरी तौर पर उनको बचाने की कोशिश की और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं, लेकिन बदकिस्मती से 5 नौजवानों को पानी से जिंदा ना निकाला जा सका, वो गर्क हो गए। बाकी 2 नौजवानों को बाहिफाजत पानी से निकाल लिया गया, जिनकी शनाख्त मोहम्मद इब्राहिम और मरवीन की हैसियत से हुई है। मरने वालों की शनाख्त धनुष, लोहित, दिनेश्वर, साहिल और जतिन के तौर पर की गई है। इन नौजवानों की अचानक मौत ने इनके घर वालों और दोस्तों में गम की लहर दौड़ा दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर कांग्रेस और एनएसयूआई के कारकुनों ने हमला करते हुए तोड़फोड़ की। बीआरएस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि वाकया पुलिस की मौजूदगी में पेश आया, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और कोई मदाखलत नहीं की। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीआरएस पार्टी के साबिक एमएलए शेखर रेड्डी और जिला सदर रामकृष्णा रेड्डी पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब कर रहे थे। अचानक एनएसयूआई के कारकुन ग्रुप की शक्ल में दफ्तर में दाखिल हुए और वहां मौजूद फर्नीचर को तोड़ दिया। యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కార్యాలయం పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ గుండాలు చేసిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నా. ప్రజాస్వామికవాదులు అందరూ కూడా
ఇటువంటి దాడులను ఖండించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. స్వయంగా పోలీసులే వెంట పెట్టుకొని వచ్చి ఈ దాడి చేయడాన్ని చూస్తే ఈ రాష్ట్రంలో పోలీసులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కలిసి పనిచేస్తున్నారు, కలిసి దాడులు చేస్తున్నారు ప్రతిపక్షాల మీద అని చెప్పి చెప్పడానికి ఇది ఒక పెద్ద ఉదాహరణ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇటువంటి దాడులను సహించేది లేదు. నిజంగా మేము కూడా అటువంటి దాడులు చేయాలి, ప్రోత్సహించాలనుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నామరూపాలు కూడా ఉండేవి కావు గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో. కానీ అది మా విధానం కాదు, మా సంస్కృతి కాదు. కేసీఆర్ గారు మాకు అటువంటి ఎప్పుడు కూడా అలో చేయలేదు. ఇప్పటికైనా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మహేష్ కుమార్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా మీ ముఖ్యమంత్రి ఎట్లాగూ ఇదే పని చేస్తాడు, ఆయన ప్రోత్సహిస్తాడు. కానీ నువ్వు మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్లో ఉన్నవాడి కాబట్టి నీకు ఏమైనా కొంచెం ఇంకా साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से संक्रांति के पेश नज़र 188 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सुधीर ने कहा कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए इन ट्रेनों में तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन में आज से इजाफी बोगियां शामिल की गई हैं और आम मुसाफिरों के लिए बड़ी तादाद में बाकायदा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। टॉलीवुड के अदाकार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की नामपल्ली अदालत से राहत हासिल हुई है, जिसने उन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हर इतवार को पेश होने की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया। ये शर्त संध्या थिएटर भगदड़ केस में अदाकार की जमानत की शराइत के तहत आयद की गई थी। सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए अदाकार ने हफ्तेवार हाजिरी से इस्तस्ना के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में संक्रांति के पेश नज़र इस साल भी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि परेड ग्राउंड में 13 ta 15 जनवरी महकमे सयाहत की जानिब से काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का एहतमाम किया जाएगा। इस खुसूस में वज़ीर मौसूफ ने इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल का पोस्टर जारी किया। जैसे ही हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के बाशिंदे संक्रांति की तातीलात के लिए आबाई शहरों के लिए रवाना हो रहे हैं, पड़ोसी रियासत की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवेज पर 10 जनवरी से शहर की हुदूद में हजारों गाड़ियों के बाहर निकलने की वजह से ट्रैफिक जाम का मंजर देखा जा रहा है। चोटुप्पल के पतंगी टोल प्लाजा आंध्र प्रदेश की तरफ भारी गाड़ियों की नकलो हरकत की वजह से टूल ऑपरेटर्स ने संक्रांति के हुजूम से निपटने के लिए हैदराबाद ता विजयवाड़ा की तरफ बाहर निकलने के लिए 6 गेट रखे और अंदरूनी गेटों को कम किया है। संक्रांति त्योहार जिसमें पतंगबाजी की जाती है, कई इंसानों और परिंदों की मौत का सबब बनती है। हुकूमत की जानिब से चीनी मांझे पर पाबंदी आयद करने के बाद भी बाज़ लोग इस मांझे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कई जानों का इंसान, परिंदे या हैवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। गुज़िश्ता साल भी बहुत से जानी नुकसानात होने के वाक़यात सामने आए थे। एक वाक़या जो शायद किसी को याद हो, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की मौत इस चीनी मांझे से गला कटने की वजह से हुई थी। त्योहार के घर में मातम छा गया था। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें कमसीन बच्चों के भी हलाक होने की खबरें मिलती हैं। परिंदों की मौत का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। त्योहार मनाने का मकसद मजहब, तहजीब और तमद्दुन को उजागर करना है। इन दिनों हाल ये है कि किसी त्यौहार से लोग खौफ और हरास का सामना कर रहे हैं, लिहाजा सबको चाहिए कि त्यौहार को खुशी से मनाएं, लेकिन अपने पड़ोसी और मुल्क में रहने वालों की सलामती को अव्वलीन तरजीह दें। चीनी मांझा इस्तेमाल करने और बेचने वालों पर हुकूमत ने पाबंदी आयद की है और जुर्माने के साथ साथ सज़ा भी मुकर्रर की है। लिहाजा चीनी मांझे से इज्तनाब करें, अपनी जान और लोगों की जान की हिफाजत करें और इन त्योहारों के ज़रिए हिंदुस्तानी तहजीब, तमद्दुन और भाईचारगी को उजागर करें। तमाम हिंदू भाइयों को संक्रांति की पुरखुलूस मुबारकबाद। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का संग बुनियाद रखने तैयारियां। रेवंत रेड्डी ने जारिया माह के अवाखिर तक इंतजामात मुकम्मिल कर लेने की दी हिदायत। 26 जनवरी से अवामी फलाह बहबूद की 4 नई स्कीमात, रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। बीआरएस पार्टी दफ्तर पर कांग्रेस हामियों का हमला, भोनगिर में वाकया। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन को अदालत से मिली राहत, हाजिरी के लिए पुलिस स्टेशन जाना नहीं होगा।
तेलंगाना के सिद्दीपेट में अलमनाक हादसा, 5 नौजवान डैम में गर्क, चीफ मिनिस्टर का इजहार रंज। संक्रांति त्योहार की तैयारियां उरूज पर, शहरी करने लगे आबाई मकामात का रुख, ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।